So we are starting a very interesting and important topic, that is motion in a vertical loop. Now this motion deals with, one second, something is moving. Okay, yes. So let us think of a situation. Suppose we have a stone of some mass m, which is tied to a rope or a thread, and then what are we doing? We are making it revolve in a vertical loop. Vertical मतलब ऊपर जाता है, नीचे आता है. U is the upper point, L is the lower point, M is the middle point. ऐसा गोल गोल घूमता है in an orbit of radius small r with center at O. Now let introduction points, let small u vector with the velocity of the body at the lowest point L and V be the velocity at some point P, general point P, when the body has risen up through a height small h, थोड़ा सा ऊपर चला गया है through a height h, and then it also makes some angle theta with the vertical axis. Now, since we are studying the chapter work power energy, we are looking at the conservation of energy during this vertical motion. अगर आप खुद घुमाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे that the body has the highest speed at the lowest point, ऊपर जाते जाते slow होता रहता है, because some of the kinetic energy gets converted into potential energy. So according to law of conservation of energy, which we are applying between point L and point P at this moment, so we find kinetic energy at L. हम क्या कर रहे हैं, ये जो L है ना, इसको हम zero potential energy line मान रहे हैं. We are considering as if, you know, let me take a pen. Okay, so we are considering that ये जो level है ना, this level here, this is the level where potential energy is zero. Potential energy हम कहीं पे भी zero ले सकते हैं, zero level हम कहीं पे भी choose कर सकते हैं. तो here this level is what is being considered to be the zero level. Now according to law of conservation of energy, the body will have only kinetic energy at L, and when it goes up to point P, it will have both kinetic energy as well as potential energy at point P. Now how much energy is there? So some students are trying to come in. How much energy is there? That what we will do is, let us use the formula. We all know that the kinetic energy is given as half of m velocity square. The velocity at the lowest point is u. So half of m u square is equal to, what is the kinetic energy at point P? यहाँ पर velocity कम होकर थोड़ी v हो गई है. So that will be half of m v square, and potential energy बढ़ गई है. It has gone up through some height h, and we know potential energy का formula is mgh. So this becomes, if I bring, okay, let's take LCM 2 here, so this will become 2gh, and फिर दोनों तरफ के 2 cancel हो जाएंगे. So we will be left with v square, और ये क्या है, u square minus, ये चीज़ उधर जाएगी तो minus 2gh. So ये तो बच्चों वही formula आ गया, third equation of motion, but we have derived this using law of conservation of energy. So what is the velocity at this point? Is under root of u square minus 2gh whole under root, right? This is the velocity of the body at some point P. Now we can do some special cases. This is a general formula, equation number A. Suppose I want to know what is the velocity at the upper point, uppermost point. तो h कितना है, L से कंपेयर करोगे U पे जाने में कितनी हाइट गेन की हमने. सो L से O पर गए तो हमने रेडियस R गेन किया,
और O से U पे गए तो एक और रेडियस R गेन किया, सो टोटल हाइट गेन्ड इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना. दिस इज माई रेडियस, सो दिस is the twice of radius, the diameter, so h is equal to 2r. So if I use here h की जगह मैंने क्या किया, 2r डाल दूंगा. So here what will become is that velocity at the upper point will be u square, u is the velocity at the lowest point, minus 2g into 2r, that will become minus 4gr, right. Now let me take a more interesting example. Suppose we are given angle theta. हमको पता नहीं है, h नहीं मालूम. We don't know h. We only know this angle theta. Suppose we are told that the particle goes up through an angle of 60 degrees. 60 degrees में गया ऊपर, तो हमको कितना velocity होगा यहाँ पर? तो क्या करेंगे? हम डायग्राम बनाएंगे. We will say this angle is 60 degrees. This is r. ये कुछ h ऊपर गया है, तो पीछे कितना बच गया? r माइनस h कुछ बच गया. तो यहाँ पे देखो ये एंगल 60 डिग्री है. नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल whose hypotenuse is r and this angle is 60 degrees. थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है? बेस. So this length, this red arrow will be r cos 60 degrees. Will be r cos 60 degrees. And what is r cos 60 degrees? r तो r ही है, cos 60 degree होता है 1/2. That is r by 2. तो r by 2 ये है, टोटल था r, तो हाइट ऊपर कितनी आ गई? That means आधा ऊपर चला गया है. 60 डिग्रीज पे जब कोई चीज़ घूमी तो वो आधा ऊपर चली गई. दैट मीन्स हाइट कितना गेन किया? वो भी r/2. कितना बच गया? r/2. एंड वी ऑल नो r/2 प्लस r/2 विल बी r ओनली. सो हाइट गेन्ड इज r/2. नाउ लेट मी पुट दिस हाइट h r/2 इन दिस फॉर्मूला. h की जगह r/2. सो आई विल गेट u स्क्वायर minus 2g into r/2. This 2 gets cancelled with 2. I am left with velocity at this point P. This point P, velocity is u square minus gr. So what is the velocity at? So now if we have done this in terms of theta, we can calculate for any angles now. For any angles we can calculate. For example, okay, let me do one more example before I go to this. Let me find out what will be the velocity at point M. M पे क्या velocity होगी? M पर कितना ऊपर गए? M के लिए तो हम R ऊपर गए. So R गए, so what will happen is that this formula will become at the middle point become u square minus 2g, h की जगह r. So velocity at the middle point is u square minus 2gr. ठीक है? Makes sense? If you want to take a screenshot of the whole screen in one go, that is it. Take a pic, please. 1, 2, 3, 4, 5. So we have learned how to calculate the velocity of a body revolving in a vertical loop if you know what is the initial velocity at the lowest point. Then using this formula we can calculate the velocity at any point. All right. Now the second thing that we would like to learn is what is the tension along the string at any point. टेंशन का मतलब खिंचाव. टेंशन इज अ फोर्स ऑफ पुल. देखो अगर कोई रोप के साथ या थ्रेड के साथ आपने किसी पत्थर को बांधा हुआ है, और आजकल तो पतंग के दिन है, कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं, कुछ गाटी लगाते हैं. गाटी क्या होती है? गाटी में एक हम धागा लेते हैं और पत्थर बांधते हैं, उसको घुमाते हैं, वर्टिकली घुमाते हैं, जोर जोर से घुमाते हैं, और फिर हमारे छत के ऊपर से जो पतंग जाती है उसके ऊपर हम उसको छोड़ देते हैं. तो वो उसको बोलते हैं गाटी लगाना. और गाटी लगा दी तो फिर हम अपने हाथ से पकड़ के
और उसकी पतंग को काट सकते हैं। तो अब अगर आप पत्थर को ऐसे वर्टिकली घुमाओगे इन अ सर्कल, ऐसे गोल गोल घूमेगा ये पत्थर वर्टिकली इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, then there would be some tension T in the thread, some force of pull, there would be some centripetal force required for going in a circle. The forces acting on the body at point P are, what are the forces? अभी तक हम velocities के साथ खेल रहे थे, now हम forces पे आ गए. Let us look at this diagram. At point P, first force that you can look at is the force of gravity mg acting vertically downwards, right? Now what I can see is that if this body particle makes an angle theta with a vertical line, then this angle will also be vertical, because this line here, see this line and this line are parallel to each other. अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये ट्रांसवर्सल है, इज अ ट्रांसवर्सल, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा, राइट? तो वी कैन डू वन थिंग, हम इस फोर्स mg को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. एक थीटा के साथ वाली साइड mg cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाली साइड mg sin थीटा. तो वी हैव ब्रोकन, we have resolved this force mg, the force of gravity mg, right, into two rectangular components. And what are these components? एक component है mg cos theta, दूसरा component है mg sin theta. mg cos theta जो है वो बाहर की तरफ है, opposite to खिंचाव टेंशन. टेंशन कहाँ होगी? टेंशन तो अंदर की तरफ होगी, राइट? तो और mg sin थीटा जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. एंड दूसरी एक फोर्स है mg और दूसरी फोर्स है हमारे पास दिस फोर्स ऑफ टेंशन. कोई क्या कर रहा है? शाइनी सिंह वांट्स टू कम नाउ. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेंशन T is along the thread. धागे में खिंचाव कहाँ होगा? अंदर की तरफ. टेंशन इज द क्रिएटर ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. इसी टेंशन की वजह से ही तो घूमता है, खिंचाव महसूस होता है. कोई पत्थर को ऐसे घुमा कर देखना, आपकी उंगलियों को फील होगा कि आप खींच रहे हैं उसको अंदर की तरफ, टेंशन होगी. सो देयर इज अ नेट सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सेंटर एक्टिंग फोर्स which is necessary for rotational motion. So net centripetal force का formula is mv square by r, right? कौन कौन सी forces हैं along the radius? तो एक force है mg cos theta, एक है tension. Let us consider that जो अंदर की तरफ है वो प्लस, जो बाहर की तरफ है वो माइनस. सो t minus mg cos theta will be equal to mv square by r, है ना? यही होता था न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट हियर द एक्सेलरेशन इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. द फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है अंदर वाला फोर्स माइनस बाहर वाला फोर्स. सो mg cos थीटा को मैं इधर ले आता हूँ. सो आई एम लेफ्ट विद t इज इक्वल टू mv square by r plus mg cos theta. If we take m as common, I'll get tension T is equal to m v square by r plus g cos theta. This is the formula, general formula for tension. Now, but this is in terms of theta. We can also calculate in terms of height. थीटा को हम h में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना ऊपर गए, कितनी टेंशन हो गई. नाउ इन ट्रायंगल PENO, PNO, in triangle PENO, PNO, right angle triangle, what is cos theta? Cos theta will be ON upon OP. ON कितना है? अगर ये H ऊपर गया तो ON कितना हो गया? R minus H. So therefore R minus H upon R, that will be cos theta.
ठीक बात, देख लो एक बार. In triangle PNO, cos theta will be ON upon OP. OP तो रेडियस है. And what is ON? अगर LN is height, कितना ऊपर गए, then ON will be R minus H. So R minus H upon R. Let's put equation number 2 in equation number 1. What do we get? M तो बाहर है, V square by R plus G into R minus H upon R. दोनों के पास R है डिनोमिनेटर में. Let us bring this R out. Both R's are out. So I get M by R V square plus GR minus GH. शाबाश. अब देखो V square क्या होता है? V square is the velocity at this point. Can we write in terms of U? अभी अभी क्या था हमने फर्स्ट इक्वेशन में V square is equal to U square minus 2GH, है ना? ये देखो यहाँ पर. So V square is equal to U square minus 2GH. So let me substitute V square की जगह U square minus 2GH plus GR minus GH. HG को हमने GH लिख दिया. Now minus 2GH minus GH कितना हो गया? minus 3GH plus GR. Now इसमें हम देख सकते हैं H वेरिएबल है, कितना ऊपर गए वो वेरिएबल है. R कांस्टेंट, G कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है आपकी लोएस्ट पॉइंट पर वो भी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर दिस टर्म कॉल्ड H. This is a general expression for tension at any point. Let us try to see what is the tension at various special cases. Okay, so here I'll show you the entire screen later for taking a screenshot. So tension at any point, tension at the bottom, lowest point. Lowest point हमारा यही है, इसी को हमने जीरो लाइन माना है. अगर हमारा पत्थर घूमते घूमते लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है? 0. सो हियर व्हाट आई डू इज, हाइट मेरी 0, इस फॉर्मूला में H में हम इसको 0 डाल दें तो हमारे पास क्या आएगा? टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी M by R U square plus GR. Okay, let's look at the tension at the highest point H और द अपर पॉइंट U जो भी है हमारा, इसको हम अपर पॉइंट बोल सकते हैं या हाईएस्ट पॉइंट H भी बोल सकते हैं या अपर पॉइंट U बोल सकते हैं. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट और द अपर पॉइंट U वी फाइंड दैट द टेंशन H कितना ऊपर कितना गए हम, दैट इज द डायमीटर ऊपर गए. H इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, ऊपर जाने के लिए ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर. सो इक्वेशन नंबर B विल बिकम हियर, इक्वेशन नंबर B, H को हम लेंगे कितना? 2R. दिस विल बिकम माइनस 6GR, minus 6GR plus GR, that will be minus 5GR. That's equation number B. तो धागे को हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन तो फील होगी. लोएस्ट पॉइंट पे अगर उसको ये टेंशन फील हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसको कम हो रही है ना. अब देखो ये U स्क्वायर प्लस GR है, ये U स्क्वायर माइनस 5GR है. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेंशंस? फर्क कितना हुआ? सो डिफरेंस बिटवीन टेंशन is the tension at the highest point and the tension at the lowest point. So बड़ी वाली टेंशन माइनस छोटी वाली टेंशन, तो इसलिए बड़ी तो टेंशन कहाँ है? वो तो नीचे है, ऊपर तो टेंशन कम है. सो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट. This is TL minus TH, lowest point, highest point. M by R common. यहाँ से लिया हमने U square plus GR minus of U square minus 5GR. खोलेंगे तो U square cancel. ये minus into ये minus बन जाएगा plus. So GR plus 5GR will be 6GR. R gets cancelled. So tension at the lowest point minus tension at the highest point will be 6 times the weight of the stone. mg is the weight of the stone. So कितना फर्क है? टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट कितनी होगी? विल बी द वेट 6 times the weight of the stone plus the tension at the
highest point, right? ठीक है, अच्छा ज़्यादा ही वो हो गया है, फिर भी थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, अलग अलग करके ले लो। एक तो ये ले लो, टेंशन स्क्रीनशॉट ले लो, एक टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट, 1 2 3 4, थोड़ा और दिखा देता हूँ। Here, take this expression, 1 second screenshot, then third screenshot, this is the general expression, and then we have tension at the lowest point, special cases, highest point, and let's do difference in tension, difference between tension at highest and lowest point. Okay, इसको याद कैसे रखेंगे? Don't worry, I am here. So here, how to remember? So I made a wheel. एक व्हील बनाया हमने, एक टेंशन का व्हील बोलता हूँ और एक वेलोसिटी का व्हील। तो हमने सबसे पहले वेलोसिटी पढ़ा था, तो आइए देखते हैं। लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और वो हमने इसकी वैल्यू ढूंढी थी √5 rg। मिडिल पॉइंट पे आई थी √rg 3rg, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे √rg, yeah, that's right. So you can remember this like this is, ये वाली 1 है, ये 3 है और ये 5 है, अंडर रूट के अंदर है, बट रेशियो क्या है? 1 3 5। लेट्स लुक एट टेंशन। मान लो हम इस स्पीड से घुमाते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो ये हो गया ज़ीरो, ये है कितना 3 mg फिर, और ये कितना है 6 mg। सो टेंशन का व्हील को याद रख सकते हो 0 3 6 है ना, 12 बजते हैं तो 0 टाइम होता है, घड़ी की जैसे है ये 0, और यहाँ पर 3 बजते हैं और यहाँ पर 6 बजते हैं, राइट? 0 3 6, जबकि वेलोसिटी में 1 3 एंड 5, यहाँ तो 3 आता है वेलोसिटी में भी, राइट? लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, इट इज़ 1, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5. So if you remember this tension wheel and the velocity wheel, then it will save you a lot of time in looking at the various kinds of numerical questions. Take a screenshot of this page as well, please. This is a summary of what we have done in the previous 2 pages. On your marks, get set, go. So ये तो कर लिया हुआ हमने, फिर से नहीं, तो हमने उसको एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और ये क्या है न्यूमेरिकल? आ जाओ, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग, स्पीकिंग द क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट हाइट। सपोज हमने हॉट व्हील वाला एक टॉय होता है बच्चों के पास, एक कार यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ये पूरा गोल चक्कर काट के आगे चली जाती है। सो हॉट व्हील के पाथ है ये, राइट? नाउ ये रास्ता है, द ब्लू इज़ द पाथ फॉर द स्मॉल टॉय कार टू मूव। ऐसे ही जो है डिज्नीलैंड में जो जॉय राइड्स बनती हैं, वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करती हैं। नाउ क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट हाइट, मिनिमम हाइट, शुड अ कार बी अलाउड टू गो डाउन सो दैट इट इज़ एबल टू कंप्लीट अ वर्टिकल लूप। दैट मीन्स ये कार ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे, फिर उल्टी हो जाएगी, कार ऐसे उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे आके बिल्कुल कार इन्वर्टेड हो जाएगी, यहाँ पे उसका ड्राइवर का सिर नीचे हो जाएगा, राइट? फिर उसके बाद वो कार यहाँ आएगी, उसका ड्राइवर फिर ऐसा हो जाएगा, और फिर वो आगे चली जाएगी, उसका ड्राइवर ऐसा आगे चला जाएगा। तो क्या स्पीड के साथ है ना ये ड्राइवर, राइट? क्या स्पीड के साथ हम, या किस हाइट से इसको हम छोड़ें कि ये वर्टिकल लूप करके आगे चली जाए? दैट मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर वो नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रही होगी, है ना? मौत का कुआं बना रहे हैं हम, ऐसा उल्टी कार हो जाए लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ना जा पाए, गिरे मत नीचे की तरफ। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ वेरी पावरफुल टूल, कर सकती है वो ये काम। तो हम बोलते हैं, लेट अस से द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट should be equal to the kinetic energy at the lowest point. देखो इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि गोल चक्कर काट ले। अभी अभी क्या पढ़ा हमने? गोल चक्कर काटने के लिए क्या चाहिए होता है हमको?
अगर गोल चक्कर काटना है हमने तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी स्पीड होनी चाहिए, √5 rg। अगर ये स्पीड होगी तो ये पूरा गोल चक्कर काट लेगी। अगर स्पीड इससे कम होगी तो ये पूरा गोल चक्कर काटेंगे, यहाँ पे ही पहुँचेगी, फिर नीचे आ जाएगी। सो कम से कम इतनी स्पीड चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज दैट कंसेप्ट। सो द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट should be equal to kinetic energy at the lowest point. mgh, h minimum, mgh minimum, mini, yeah, min will be half of m, और velocity at the lowest point कितना, v square √5gr का स्क्वायर will be 5gr। इधर का एक m इधर के m से गया, इधर का g एक g के साथ गया, तो क्या आया हमारे पास, h minimum is equal to 5/2r। 5/2r रेडियस है, r प्लस r डायमीटर हो जाएगा। तो ये कितना है, ये तो हमारा यहाँ तक जाऊँगा तो मेरा ये 2r हो जाएगा। इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को, कितना, आधा और 2.5r, तो यहाँ पे मैं 0.5r, राइट, और ऊपर जाऊँगा किससे, यहाँ से और ऊपर। दैट मीन्स वो बन जाएगा 5/2 विच इज़ हाउ मच, 2.5r, राइट, 5/2r और 2.5r। अपने आप में एंट्रेंस में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो व्हाट इज द मिनिमम हाइट फ्रॉम विच यू शुड ड्रॉप योर हॉट व्हील्स कार so that it is able to complete the circular loop, and that answer is this 5/2r. Okay, makes sense? Take a screenshot please. Okay, so this is it as far as this topic is concerned. तो हमने, let me revise it for you, those who have come late, for them it's a revision, others also it's a revision. Motion in a vertical loop. So we said, let us consider a body of mass m which is tied with a thread and it is made to revolve in a vertical circle. ऐसे vertical direction में हम इसको घुमा रहे हैं। तो जब भी मैं ऐसे बातें करूं तो ये अंग्रेज़ी और वर्ड्स और डायग्राम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके मन में एक्सपेरिमेंट हो रहा होना चाहिए कि आपने एक धागे को पकड़ा हुआ है, उसके साथ आपने एक स्टोन बांधा हुआ है और उसको आप वर्टिकली घुमा रहे हो, है ना, यू आर रोटेटिंग इट इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। सो इफ़ यू आर रोटेटिंग इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, then what would happen is that it will have some speed. The speed will be different at the lowest point, at the middle point and at the upper point. Why will be the speed different? Because as you go up, part of your kinetic energy gets converted into potential energy. And law of conservation of energy says energy can neither be created nor be destroyed. These equations are very useful even for a fighter jet pilot, because वो भी वर्टिकल लूप्स लेते हैं ना, ऐसे नीचे आते हैं बॉम्ब मारने के लिए एंड फिर से ऊपर चले जाते हैं। सो कितनी स्पीड होनी चाहिए उनकी कि वो पूरा गोल चक्कर एक काट सकें। तो फाइटर पायलट्स के लिए भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राफेल जेट फाइटर पायलट्स या किसी को अगर पायलट बनना है फ्यूचर में तो उसके लिए। तो हियर सो हम बोल रहे हैं कि u इज द velocity of the body at the lowest point and v be the velocity at some point p which makes an angle theta. हमने कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg नीचे लगता है। इसके दो कंपोनेंट्स किए हमने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg cos थीटा टेंशन को अपोज करता है। टेंशन तो धागे में होती है, टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ओ होती है, तो mg को ऑपोजिट लगता है तो कम करने की कोशिश करता है। तो टेंशन एंड mg cos थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किया, काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, मतलब टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बट हमने एल को ही ज़ीरो माना है कि लेट अस से यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो माना है, ज़ीरो लाइन माना है हमने इसको। तो
एल पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, एल पे क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर वी हैव रिटन काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कितना ऊपर है, एच ऊपर है, ये एच डिस्टेंस ऊपर है, सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी mgh और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास रिलेशन आ गया, और ये रिलेशन तो वही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस क्या है, एस इज इक्वल टू एच, एच ऊपर गया, सो वील गेट व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी लगाकर नहीं करना चाहते हैं एग्जाम में, एंट्रेंस में कहीं पर, तो आपको पता है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ अगर हमको पता चल गया ये जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे ढूंढ सकते हैं। मिडिल पॉइंट पे क्या होगी, तो मिडिल पॉइंट पे जाने के लिए ऊपर कितना गए, r, सो ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gr। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, r प्लस r, दैट इज 2r। सो हियर दैट बिकम्स अपर पॉइंट u स्क्वायर, r हो जाएगा 2r, सो दैट विल बी माइनस 4gr। velocity at the upper point, and velocity at any point can also be found, right? फिर हमने आपके साथ किया टेंशन। टेंशन के लिए हमने बोला कौन कौन सी फोर्स है, एक mg है जिसके दो टुकड़े हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और टेंशन कहाँ लग रही है, p से o की तरफ इधर, तो नेट टेंशन कितनी, T माइनस mg cos थीटा इस सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। इसको हम उधर ले गए, m कॉमन लिया, टेंशन ढूंढा, फिर हमने क्या किया, cos थीटा को लिखा इन टर्म्स ऑफ r माइनस एच एंड r। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, उसको सब्स्टिट्यूट किया ताकि h में आंसर आ जाए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया टेंशन का, इक्वेशन नंबर b। स्पेशल केसेस किए, एट द बॉटम पॉइंट h इज 0, वेलोसिटी इतनी, हाईएस्ट पॉइंट में h इज 2r, वेलोसिटी इतनी, फिर फ़र्क कितना है, फ़र्क ढूंढा। ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट द मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट में कितना गए ऊपर आप, h r गए ऊपर, सो मिडिल पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं आप ऐसे ही, h की जगह r ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3gr प्लस gr, दैट विल बी माइनस 2gr। डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, राइट? तो हमने यहीं से टेंशन का डिफरेंस ढूंढा कि भाई लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में फ़र्क कितना है, 6 mg का, राइट? और मिडल पॉइंट में करते तो वो 3 mg आता, तो हमने व्हील बना लिया। यहाँ पर अगर टेंशन 0 है तो यहाँ पर 3 mg होगी, तो फ़र्क कितना है, 3 mg। अगर यहाँ 0 है तो नीचे 6 mg होगी, राइट? मान लो ऊपर टेंशन कोई बोलता है यहाँ पर टेंशन है mg, अगर mg है ऊपर तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, 7 mg, क्योंकि इनका जो फ़र्क है, डिफरेंस है ना, वो 6 mg का होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं है, mg है, तो नीचे हो जाएगी 7 mg। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे 2 mg है तो लोएस्ट पॉइंट पे हो जाएगी 2 प्लस 6 8 mg। हाईएस्ट पॉइंट पे 5 mg है तो लोएस्ट पॉइंट पे हो जाएगी 6 प्लस 5 11 mg। ये व्हील है जो बताता है कितना फ़र्क है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है तो लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg है और मिडिल पॉइंट पे 3 mg है, तो ये है 0, ये 0 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। ऐसे ही वेलोसिटी का किया, 1 अंडर रूट आर जी, 3 अंडर रूट आर जी एंड 5 अंडर रूट आर। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटीज पूरा गोल चक्कर काटने के लिए। अगर वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट 5 आर जी नहीं हो, उससे कम हो, तो ये पूरा गोल चक्कर काटेगा ही नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो तो काट लेगा, भाई ये कम से कम है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट अंडर रूट 5 आर जी होगी तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी अंडर रूट आर जी। अगर नीचे वाली ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? सो दैट इज़ इट as far as this topic is concerned, and we will learn only so much today. We will not go into another topic. Our time is also getting up. You can unmute and if you have a question, ask, so that although I have discussed this with you twice, but still
I can always do more number of times.